Development of state-relevant short, medium, and long-term courses, facilitate all departments in terms of adopting smart norms. Next, may I request Sanjay Kumar sir, Director Stripe, who has come from Delhi, Ministry of Skill Development and Education. I extend my hearty welcome to our chief guest of honor, and other people. Thank you. पे और ग्रेस भी आता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे सुबोताबिन जी के नेतृत्व में और हमारे सुभाष पाटिल के नेतृत्व में ये जो हमारे संस्था है ITI, वो और मजबूत होकर आगे बढ़ते रहेंगे. The activities which the Department of Skill Development and Entrepreneurship is planning to take up under Sankalp is district-wide skill gap and international agency for skilling activities in the state. And as our director in his keynote address has said that this department has been set up in parallel to the to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Once they have started, a separate ministry was set up. Then after this department has come into. So we impart skill development through various schemes. So the first is the core activity is the Industrial Training Institute, skill development through Industrial Training Institute. It comes under Craftsman Training Scheme, and we have at present there are 5 central sponsored schemes. Then one of the scheme of our department is Sankalp, for which today we are gathered here for a workshop. इससे अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है, और एक बार जब ये चीज इंकलकेट हो जाएगा कल्चर में. मेरे साथ हैं सुबोध ताबिन जी, जो है डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. वेलकम सर. थैंक यू. सर, आज जो लोअर दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ के जो ITI है, यहाँ पे जो प्रोग्राम जो वर्कशॉप करवाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट we are organizing a workshop on Sankalp and Strive. These two projects are under sponsorship of Government of India. Idea is to create awareness and sensitize the importance of the Sankalp and skill development under this Sankalp and Strive, and that's why we have invited the representative from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, which is be represented by 2 directors, and also a representative from NSDC, New Delhi, who will be talking about Sankalp, talking about the skill Strive, and then talking about the PMEGP, and then talking about the apprenticeship part to be implemented in the state. अभी आपने बताया संकल्प और जो स्ट्राइव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो स्कीम है ये, तो इस स्कीम में ये जो स्कीम है इसके तहत क्या क्या आता है? Basically, main objective is to strengthening the mechanism of skilling. तो स्किल का जो स्किल सिस्टम ऑफ स्किलिंग उसको स्ट्रेंथनिंग करना है, एंड आपका जो इंस्टीट्यूशनल जो सर्टेन ड्रॉबैक्स जो होता है, तो पुश अप द स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मैकेनिज्म जो उसका सिस्टम जो होता है उसी को पुश अप करने के लिए institutional mechanism and also the standard of the skilling process in the state. That is the basic idea about this matter. तो आप ये जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये सिर्फ जो ITI इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है या फिर जो बाहर के जो लोग हैं वो भी इसे अवेल कर सकते हैं? नहीं, अंडर दिस स्ट्राइव बेसिकली वी हैव वन प्रोजेक्ट ITI, गवर्नमेंट ITI Dirang is a project ITI and Strive, under which Government of India will finance for the strengthening of
institutional mechanism. But another is Sankalp scheme. So we are going to have the gap study, skill gap study and tracer study. Like जो ITI से पास आउट हो जाते हैं तो बच्चे का क्या होता है, पहले जो होता था, ऑफ कोर्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दे आर हैविंग इन देयर माइंड इज गवर्नमेंट जॉब का. नाउ दिस गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल दीज डेज. नाउ अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहे या गवर्नमेंट जॉब कहे, तो वी वांट टू हैव द ट्रेसर स्टडी आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द ITIs. Actually what they are doing and what corrective measures we can take. For that purpose we are going to have a study and then so also the skill gap study. तो जगह जगह में requirement is varied. जैसे तवांग में जो actually local skill का जो जरूरत होता है that may be varied in the Longding. So that kind of skill gap study will also be conducted so that we can focus under the Sankalp and both under the stripe also. So that is how this scheme will work in the state. यानी कि जो ये दो स्कीम है ये इंस्टीट्यूशन को ही स्ट्रेंथन करना नहीं बल्कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पास आउट होने के बाद वो किस तरह से अपने स्किल को और निखारे और किन किन सेक्टर में अपने स्किल को यूज़ करे, इसके लिए भी है. जी जी, उसका बेसिक वही है कि आफ्टर पास आउट द स्टूडेंट नॉर्मली हम लोग का जो एक्सपीरियंस किया गया है कि ITI में आ जाते हैं, पास आउट होते हैं एंड दे लुक्स फॉर द गवर्नमेंट जॉब और माने दे आर नॉट गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब. उसमें हार्डली 10-5% का गवर्नमेंट जॉब में मिलते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड फॉर दैट पर्पज टू this job seeking should not confine only in the state. For that purpose we also have another scheme, national apprenticeship promotion scheme. Apprenticeship कहे जाने से वही है कि on the job training after ITI or from polytechnic also and from those who are graduate or class 10-12 pass, they can also join in the apprenticeship courses. That is basically on the job training. So that will be done in the outside the state. So once they go for the on the job training, so for few months they will be undergoing training and thereafter some company and then like Oil India or Railway or even the Air India, whoever government sector undertaking, even the private sectors, they can participate in the apprenticeship courses. So once they done means the employability rate of employability increases because their skill is enhanced. And therefore, when you go for the job and then in the market, it's become more employable. तो क्या अभी तक जो ITIs हमारे स्टेट में जितने भी ITIs है स्टेट में, तो क्या बाहर के ऐसे कुछ जहाँ पे स्टडी के बाद स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनली थोड़ा सीख पाए, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है हमारे स्टेट के ITIs ने अभी तक? ITI का अरुणाचल इज जीरो इंडस्ट्रियल स्टेट. यहाँ में नॉर्मली अदर स्टेट्स में क्या होता है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइज होता है, जहाँ अदर एक्टिविटीज़ होता है, बिजनेस एक्टिविटी होता है, इंटर्नशिप ये सब, हाँ उसको आजकल ड्वेल सिस्टम ऑफ ITI का भी सिस्टम होता है. ड्वेल इन द सेंस दैट आप अगर 1 साल का कोर्स हैं तो उसमें 6 महीना आप क्लासरूम ट्रेनिंग हो गया एंड देन अनदर 6 महीना को आप इंटर्नशिप का तौर पर मैंने उसको अब बाहर में इसमें ये इंडस्ट्री में या उसमें कर लेता है, देन उसका एम्प्लॉयबिलिटी लेवल बढ़ जाते हैं. तो यहाँ में तो हम लोग का ऐसा इंडस्ट्री जहाँ में ऐसा नहीं है, जहाँ पर हम लोग ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को हम लोग मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. लेकिन हमारा यही कोशिश होता है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द ITI दे शुड गो फॉर द अप्रेंटिसशिप and for which government of Arunachal Pradesh is already provided budget to us. And सवाल ये था कि इंटर्नशिप के लिए क्या ITI के बच्चों को बाहर भेजा जाता है, क्या कुछ ऐसा प्रोविजन अभी तक है हमारे स्टेट में? Yes, we have now. अभी बजट अनाउंसमेंट किया गया है लास्ट असेंबली में, तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में we have budgetary provision that will sponsoring those बच्चों को
जो ITI पास आउट हो गया दे विल बी सेंट टू आउटसाइड द स्टेट्स फॉर इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप जो भी कहे, बट अदर वर्ड दैट इज अप्रेंटिसशिप। जी तो अभी तक हमारे स्टेट में कितने ITI जो है वो रन कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमारा पुराना में से 5 था, नाउ 2 more ITI कमिंग अप। वन इज जैसे कि गवर्नमेंट ITI सागाली, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। सो यस, नाउ इनरोलमेंट इज ऑलरेडी बीन डन। तो अभी 1 नवंबर से अभी क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। एंड अनदर वन इज इन मानुपोजांग इन जीरो, दैट एवरीथिंग इज सेट नाउ। We have already submitted the application for the accreditation. Accreditation कहे जाने से we need to accredit the trades under this NCBET, National Council for Vocational Education and Training, New Delhi. So once it is done, then the ITI located in Manipur will also be started. Possibly from next academic session we will start this program. And another 2 is coming up. That raising the number of ITI into 9, that is Pangin, and another one is in Kanubari in Longding district. Yeah. तो जितने भी ITIs है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे कौन कौन से जानना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि ITI में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और मतलब बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड देन ड्राफ्ट्स का ही सिखाया जाता है। इसके ही जो है जितने भी यहाँ के जो ड्राफ्ट का हो गया, फिर प्लम्बिंग का हो गया और इलेक्ट्रिक का जो हो गया, वायरिंग का, उसी का ही कोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही पता है, लेकिन अभी बहुत सारे कोर्स इंक्लूड हुए हैं, नए नए कोर्स। अभी का जो जनरेशन है, अभी जो आजकल जो मांग है मार्केट में, उसको लेकर सुनने में आया है कि कई सारे कोर्स जो है इंक्लूड किया गया है ITI में। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसा है, हम लोग का एज ऑफ टुडे 22 ट्रेड्स है, डिफरेंट ट्रेड्स इन जो एग्जिस्टिंग ITI में जो लगाया गया। जैसे आप कुछ नेम ऑफ द ट्रेड्स को आप जैसे पॉइंट आउट किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट जेन ट्रेड्स, जो नया दौर का जो ट्रेड्स हो रहा है, 5 more ITIs coming up. We are trying to introduce those kind of trades which are the market driven. जो मार्केट लोकल मार्केट में डिमांड है या आउटसाइड द मार्केट में जो डिमांड होता है, सो दैट वंस द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, the pass out trainees, pass out candidates, they should be able to easily get absorbed in the private sectors. So हमारा ये कोशिश है ITI में, जैसे कि आप जैसे बोला प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, वायरमैन का है, कोपा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, टूरिस्ट गाइड है, एंड देन मोटर मैकेनिक, व्हीकल मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिक है, एंड देन फ्रंट ऑफिस का है, अंडर दिस trades. Those are the few trades I mentioned. We have number of trades are coming up, new trades are coming up, and then yes, fashion technology है, and then basic cosmetology है, जैसे ब्यूटिशियन लोग का जो होता है। हमारा कोशिश यही है कि to introduce the new possible trades and उसका जगह जगह पे मतलब अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग ट्रेड का। Our target is not only to provide training to the ITI, this class 10 and 12 pass. Our target is also to provide training to the class 8 pass. आप देखिए समाज में आज का दिन में क्लास 10 पास वाला बच्चा बहुत लोग है, बहुत सारा है, who appear class 10 but then could not make it. तो मेरा कहना का यही है कि क्लास 10 अगर पास नहीं होता तो कहीं का नहीं रहता है एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। बट अवर endeavor is that मेरा कोशिश यही है कि टेक दोज यूथ who could not pass the class 10, like आपका कारपेंट्री हुआ, वायरमैन हुआ, प्लम्बर हुआ, दोज ट्रेड्स वो क्लास 8 पास, क्लास 10 फेल वालों बच्चों को ले भी हम लोग का ये कोशिश है। हाँ, क्लास 10 पास करने का बाद में आप इवन यू कैन गो फॉर द पॉलिटेक्निक जो है। हमारा जो यहाँ होता है 1 year कोर्स का होता है, 2 years कोर्स का होता है। दिस इज
बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स। तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर कंस्ट्रक्शन साइट को कहे तो कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारे काम जो है अभी न्यू टेक्नोलॉजी आए हैं। अगर प्लम्बिंग का बात कहें तो इसमें भी कई न्यू टेक्नोलॉजी आए हैं। वायरिंग की बात करें तो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी आए हैं। तो इस जो अभी जो आए नए टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ के ITI की जो पढ़ाई है, या हम कहेंगे जो टेक्निकल जो स्टडी है, क्या वो इसके साथ अपग्रेड होते जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस ट्रेड लाइक मेसन, जो पहले नहीं था, उसको मेसन को हम लोग लगा रहा है। नाउ नॉट थ्रू ITI बट थ्रू द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वी आर हैविंग कोलैबोरेशन विद द JCB। आप JCB सुना होगा, जो उसमें एक्सकेवेटर है, डंपर है, रोलर है। उसका आप देखिए, अभी जब मैं एज ए डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जब मैं कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट में गुजरता है तो आई ऑलवेज लुक एट द ऑपरेटर, जो उसका एक्सकेवेटर का ऑपरेटर, मैं देखता हूँ वेदर ही इज ट्रैवल और नॉन ट्रैवल, उसका पेस में क्या होता है। आज तक मैंने कोई ट्रैवल पेस नोटिस किया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वाई नॉट आवर बॉयज एंड गर्ल्स शुड ऑल्सो गो फॉर दोज काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। तो उसके लिए वी आर हैव ए कोलैबोरेशन अंडर दिस CSR। तो उसका अंतर्गत हम लोग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 240 यूथ फॉर ऑपरेटर ऑफ दिस JCB का, आपका एक्सकेवेटर का, डंपर का, रोलर का। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, मे बी फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, आई मीन दिस December। JCB company, they have already sanctioned, and then very soon that training will be provided. Those are because आज का दिन में आप देखिए एक्सकेवेटर का इतना रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज अनएवोइडेबल पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन नाउ। तो उसी का अंतर्गत हम लोग वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग डीजल मैकेनिक, डीजल ऑपरेटर मैकेनिक, एंड देन RSC दिस रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। उसका ये नया जो उसका हम लोग का ट्रेस जो है वो, हाँ उसका साथ में वी हैव टू मूव अलोंग विद द टाइम एंड डिमांड। ऑल दोज आर मार्केट ड्राइवन, एंड देन आवर यूथ शुड नॉट बी लैगिंग बिहाइंड ऑन दैट एस्पेक्ट। ओनली थिंग इज दैट जो भी बच्चा लोग आता है, एंड देन पेरेंट्स शुड ऑल्सो इनकरेज। गवर्नमेंट ITI में वी आर प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड एट द रेट ऑफ 1,400 स्टाइपेंड पर मंथ, एंड रेस्ट आर everything is free. Free training we are providing, and for that purpose we used to conduct admission test in the month of April, May in every district headquarters. That is the process how we enroll the trainees in the ITIs. Apart from this ITIs, अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलिए, and then high-end skill development training program under this Chief Minister युवा कौशल योजना बोलिए, we are providing a lot of our youth, they are still working outside the state, like aerospace, like ground staff in the civil aviation sectors, and other hospitality sector. Many of them are still working, earning handsome amount. Only thing is हमारा बच्चा लोग जो है कि we provide skill development training, and they got job also, but they don't want to stay outside the state. That kind of mindset what they have, तो वो इमीडिएटली फिर वापस आ जाते हैं। बट अगर आप बाहर में रह के कुछ साल अगर अपना से एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आई मीन गेन करता है, ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर में तो आपका सैलरी भी दैट वे इट इज इनहांस्ड। तो उस ढंग से माइंडसेट को, हमारा बच्चा लोग का माइंडसेट को थोड़ा बदलना पड़ेगा उसमें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नॉट बच्चों का माइंडसेट, इवन जो हमारे यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं उनका माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब कोई कारपेंट्री का काम करते हैं, जब कोई प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, या फिर कोई एक्सकेवेटर ड्राइवर होते हैं, तो उनको बहुत ही नीचे देखते हैं कि उनके जॉब बहुत ही ये मानते हैं कि ये तो बहुत छोटे मोटे जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर जॉब में जो है उसमें एक रेस्पेक्ट होता है। हर जॉब को हमें रेस्पेक्ट के नज़र से देखना चाहिए। तो डायरेक्टर सर से आज हमने बहुत कुछ जाना, इन्फॉर्मेशन हमें मिला ITI को लेके, जो स्कीम्स आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ITI के जितने भी ITI है इसे और स्ट्रेंथन बनाने के लिए, इसके इंस्टीट्यूशनल जो है स्टडी है इसे और स्ट्रेंथन बनाने के लिए, और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उसे भी और
जो स्किल है उनका जो है उसको और अच्छा से डेवलप कराने के लिए कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे इसके स्कीम के अंतर्गत। तो मैं रोशनी परिंग द स्पेस से लोअर दिबांग वैली रोइंग।